السلام علیکم دوستو، بلال یونیک ڈیزائن میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ سوال: قوم سمود کی طرف بھیجے جانے والے پیغمبر کا اسم گرامی بتائیے۔ جواب: حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال: اونٹنی کا معجزہ دکھانے والے پیغمبر کا اسم گرامی بتائیے۔ جواب: حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال: قوم سمود کہاں رہتی تھی؟ جواب: ہجر کے علاقہ میں جو حجاز اور شام کے درمیان وادی القری تک پھیلا ہوا ہے اور اب فج النقع کہلاتا ہے۔ سوال: کیا قوم سمود کی کچھ نشانیاں ابھی باقی ہیں؟ جواب: ہاں، ان کی پہاڑوں میں کھودی ہوئی عمارتیں اب تک موجود ہیں۔ سوال: قوم سمود کس کی پوجا کرتی تھی؟ جواب: مختلف بتوں کی۔ سوال: بتائیے ناقۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ سوال: بتائیے ناقۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہتے ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے معجزہ دکھانے پر اصرار کرنے کی وجہ سے اللہ پاک سے مانگی تھی۔ سوال: ناقۃ اللہ کیسے وجود میں آئی؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تو پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمان قوم یعنی سمود کس طرح تباہ ہوئی؟ جواب: اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا جو کڑکدار بجلی زلزلہ ڈالنے والی دہشت ناک اور خوفناک چیخ کی صورت میں ان پر نازل کر دیا گیا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا اسم گرامی کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 8 بار۔ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جن میں حضرت صالح علیہ السلام کا اسم گرامی ہے؟ جواب: سورہ الاعراف آیت نمبر 73، 75، 77، سورہ ہود آیت نمبر 61، 62، 66، 89، 4 بار۔ الشرح میں 142، سورہ الشرح میں آیت نمبر 142۔ سوال: عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: یہ سامی اقوام کی ایک شاخ ہے۔ عاد اولیٰ کا تعلق حضرت ہود علیہ السلام سے ہے اور اس عذاب سے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ جانے والے لوگ جن کی نسلوں کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا عاد ثانیہ کہلاتا ہے۔ سوال: قوم سمود کی بستیاں کہاں تھیں؟ جواب: حجاز اور شام کے درمیان وادی القرا میں۔ سوال: سمود ارم کن کو کہتے ہیں؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، انہیں ہی عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ سوال: قوم سمود کے معاشرے کی نمایاں نشانی کیا تھی؟ جواب: ہر اونچی جگہ پر عمارت اور پہاڑوں میں کھودی ہوئی عمارتیں۔ سوال: قرآن مجید میں پیغمبروں اور قوموں کے قصے کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ جواب: تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر عمل کریں۔ سوال: قصص القرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم نے اپنے نبی سے نشانی کا مطالبہ کیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نشانی سے کیا مراد ہے؟ جواب: معجزہ۔ سوال: کیا معجزہ نبی کا اپنا عمل ہوتا ہے، یعنی کیا نبی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اپنی مرضی سے معجزہ دکھا سکے؟ جواب: نہیں، معجزہ اللہ پاک کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ نبی بہرحال انسان ہے اور انسان کو یہ طاقت نہیں کہ اللہ پاک کے کسی قانون یا کام میں دخل دے سکے۔ نبی کا کام دعا ہے اور اللہ پاک کا کام معجزہ دکھانا ہے۔ سوال: معجزہ اللہ کا کام ہے، نبی کا کام نہیں؟ سوال: معجزہ اللہ کا کام ہے، نبی کا کام نہیں، کیا آپ اس کا ثبوت قرآن مجید سے پیش کر سکتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی سورہ المومنون میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور کسی رسول کی طاقت میں نہیں کہ وہ کوئی نشانی معجزہ لا سکے خدا کی اجازت کے بغیر، پس جب خدا کا حکم آ پہنچتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس موقع پر جھٹلانے والے خسارہ میں پڑ جاتے ہیں۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے والے ان کی قوم کے سرداروں نے بھی اپنے آپ کو خدا کے سوال: حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے والے ان کی قوم کے سرداروں نے بھی اپنے آپ کو خدا کے مقبول بندے سے ثابت کرنے کے لیے کیا دلیل دی تھی؟ جواب: انہوں نے کہا تھا کہ اے صالح، اگر ہم باطل پرست اور خدا کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے ہیں اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دھن دولت، سرسبز شاداب باغات کی فراوانی، سونے چاندی کے بہتات، بلند و عالی شان محلات، میوے اور پھلوں کی کثرت، شیریں نہروں اور عمدہ باغوں کی نعمت کیوں کر حاصل ہوتی، جبکہ خود تمہارے پیر تنگ حال اور غریب ہے؟ پھر تم ہی بتاؤ کہ ہم مقبول ہیں یا تم؟ جواب:
सवाल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सरदारों के इनकार पर नबूवत और गुमराही पर इसरार करने और शेखी व तकब्बुर करने के जवाब में क्या इरशाद फरमाया? जवाब, आपने फरमाया, ऐ लोगों, तुम अपनी उस खुशहाली पर शेखी न मारो और खुदा के सच्चे रसूल और उनके सच्चे दीन का मजाक न उड़ाओ, इसलिए कि हम तुम उस तरह कब्र गुरूर में मुब्तला रहे तो अल्लाह पाक पल भर में उन सब चीज़ों को फना कर देगा, क्योंकि हर सामान ऐश अल्लाह की खुशनुदी का बास नहीं होता। उनकी खुशी और रज़ा हासिल करने के लिए माल दौलत की बजाय तक़वा और अताअत की ज़रूरत है। सवाल कौम समूद का अपने नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ क्या ख़याल था? जवाब, वो उन्हें अपने ही तरह का एक इंसान समझती थी और कहती थी, क्या हमारी मौजूदगी में उस पर खुदा की नसीहत उतरी है, यानी हम अमीर हैं और यह गरीब हैं। सवाल ऊँटनी का मौजज़ा दिखाने के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को किस चीज़ से मुतनबा किया था? जवाब, आपने फरमाया था कि उनको ज़र न पहुँचाना और चश्मे से एक दिन सिर्फ ये ऊँटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन उनके मवेशी, अगर उसको नुकसान पहुँचाया गया तो पूरी कौम तबाह हो जाएगी। सवाल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तबाही के लिए कौन सी निशानी मुकर्रर की थी? जवाब, जब वो लोग नाकतुल्लाह को नुकसान पहुँचाएगी तो तबाह हो जाएगी। सवाल कौम समूद ने जब अल्लाह की ऊँटनी को हिलाक कर दिया तो उन पर क्या गुजरी? जवाब, वो पूरी कौम तबाह हो गई। सवाल कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन के जवाब में क्या कहा था? जवाब, अगर तुम पहाड़ में से जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखा दो तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। सवाल क्या कौम समूद के लोग अपनी पसंद का मौजज़ा देखकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए? जवाब, नहीं, सिर्फ एक सरदार जंदा बिन उमरो ईमान लाए। सवाल ऊँटनी को हिलाक करने में सबसे पहले और ज़्यादा हिस्सा किसने लिया था? जवाब, कदार बिन सालिफ ने। सवाल जब नाकतुल्लाह को हिलाक कर दिया गया तो उनका बच्चा कहाँ चला गया? जवाब, वो चीखता चिल्लाता पहाड़ों में गायब हो गया। सवाल जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नाकतुल्लाह के हिलाक होने की खबर मिली तो आपने क्या इरशाद फरमाया? जवाब, आपने अबदीदा होकर फरमाया, ऐ बदबख्त कौम, आखिर तुझसे सब्र न हो सका? अब खुदा के अजाब का इंतज़ार कर, 3 रोज़े के बाद वो न टलने वाला अजाब आएगा और तुम सबको हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद करके रख देगा। सवाल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ज़बान से 3 दिन के बाद अजाब इलाही की खबर सुनकर कौम समूद के चेहरों की क्या कैफियत हो गई थी? जवाब, खौफ के मारे पहले दिन उनके चेहरे जर्द, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह हो गए थे। सवाल क्या आप बता सकते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब लश्कर इस्लाम का गुज़र हिजर के इलाके में समूद की बस्तियों पर से हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से क्या फरमाया था? जवाब, जब सहाबा ने समूद के कुएं से पानी भरा और आटा गूँथ कर रोटियां तैयार करने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस पानी को गिरा दो, हांडियाँ उलट दो और आटा बेकार कर दो, क्योंकि ये वो बस्ती है जिसमें खुदा का अजाब हुआ। यहाँ न क़याम करो और न यहाँ की चीज़ों से फ़ायदा उठाओ, आगे बढ़कर पड़ाव डालो, ऐसा न हो कि तुम भी किसी बला में मुब्तला हो जाओ। सवाल क्या आप बता सकते हैं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की इत्तला के मुताबिक जब 3 दिन गुजर गए तो कौम समूद का क्या अंजाम हुआ? जवाब, रात के वक्त एक हैबतनाक आवाज़ ने हर शख्स को उसी हालत में हिलाक कर दिया जिस हालत में था। सवाल बताइए कौम समूद को हैबतनाक आवाज़ के जिस अजाब से अल्लाह पाक ने हिलाक किया था उनके लिए कुरान मजीद में कौन सी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? जवाब, सायका, करकदार बिजली, रजफा, जलजला, डाल देने वाली शय, तागिया, दहशतनाक, सीहा, चीख। सवाल क्या कौम समूद पर अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल होने वाले अजाब में कोई बच गया था? जवाब, हाँ, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले चंद नेक लोग। सवाल अपनी कौम को तबाह होने के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने किस तरह खिताब किया था? जवाब, आपने बड़े अफसोस और दुख के साथ उनके लाशों से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ कौम, बिलाशुबा मैंने अपने परवरदिगार का पैगाम तुम तक पहुँचाया और तुम को नसीहत की, लेकिन तुम तो नसीहत करने वालों को दोस्त ही न समझ रखते थे। सवाल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के तबाह होने के बाद क्यों उससे खिताब किया था? नंबर 1 उससे उनके अपने दुख का इजहार होता है। नंबर 2 अल्लाह पाक ने उनका खिताब मुर्दों की रूहों को सुनवा दिया ताकि उन्होंने हैरत और निदामत में भी हो और वो अपने किए पर अफसोस करें। नंबर 3 उस किस्म के खिताब के असल मुखातिब वो जिंदा इंसान होते हैं जो उन मुर्दा लाशों को देख रहे हों ताकि उनको भी इबरत हासिल हो और उनकी तरह सरकशी न करे। सवाल कौम समूद के तबाह हो जाने के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए थे? जवाब, उनके मुतालिक मुख्तलिफ अक़वाल है। नंबर 1 फ़लस्तीन में चले गए थे। नंबर 2
हज़रत मौत में आबाद हो गए थे। नंबर 3, उन्हीं बस्तियों में रहे। नंबर 4, मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए। सही इल्म अल्लाह पाक को है। जवाब सवाल, मुख्तलिफ रवायत के मुताबिक कौम समूद के किस कदर लोग अजाब से बच गए थे? जवाब तकरीबन 120। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तालीम का मरकज़ी नुक्ता क्या है? जवाब आपने फरमाया, ऐ बरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उनके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। सवाल, कौम समूद की बस्तियों में फज अल नाका कौन सी जगह है? जवाब ये एक दर्रा है जहाँ से नाकतुल्ला पानी पीने के लिए आया करती थी। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग के लिए जवाब में उनके कौम के सरदार अक्सर क्या कहा करते थे? जवाब वो कहते थे, ऐ सालेह, उससे पहले तू हमारे साथ ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबिस्ता थी। क्या तू हमें उन माबूदों की परस्तिश से रोकना चाहता है जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? तू जिस तरीक़े की तरफ हमें बुला रहा है उनके बारे में हमको सख्त शुबा है, जिसने हमें खलजान में डाल रखा है। सवाल, आद और समूद के तमदन की नुमाया खुसूसियात का मुकाबला कीजिए। जवाब, कौम आद अपने ऊंचे सुतूनों वाली इमारतें बनाते थे और हर ऊंची जगह पर इमारत बनाकर फ़ख्र महसूस करते थे। कौम समूद के तमदन की नुमाया खुसूसियात ये थी कि वो पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर भी इमारतें बनाते थे और मैदानी इलाक़े में भी बड़े बड़े महलात तामीर किया करते थे और उन पर फ़ख्र करते थे। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद के क़िस्सा से क्या सबक हासिल होता है? जवाब, नबी की बात का इनकार करना, अल्लाह की निशानी को झुटलाना, मुफस्सिरों की बात न मानना। जवाब, नबी की बात का इनकार करना, अल्लाह की निशानी को झुटलाना, मुफस्सिरों की बात मानना, जाहिली रस्म रिवाज और एतिक़ादात पर जमे रहना, खुदाई अज़ाब को दावत देना और उस अज़ाब को दुनिया की कोई आशाइश या महलात हरगिज़ नहीं रोक सकती।